just repeat that portion again. So direct sources includes what kind of, you attended the first two class na? So tell me about the direct sources. Direct source from the interior. Yes. The direct source is exactly when our scientists discover links the building book. Yes. Continue. Building book. That सर हाँ yes. सर हिंदी में बोल सकते हैं हाँ. You just continue in any language. Firstly try in English. direct If you are source not comfortable, you can say in Hindi as well. okay sir direct source is that our scientists go deep on the earth crust 12 kilometer depth Yes. and they find very things and on this basis we discover we know about earth crust. Okay. So very correct. So deepest mine of the world, if you consider the scientific development or different project done by the different scientists of the world, including the deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project, so that is up to the extent of 12 kilometer. So physically or in reality we reaches the interior of the earth or beneath the earth up to the extent of 12 kilometer. So till that 12 kilometer whatever evidences are there from that part, वहाँ तक 12 किलोमीटर तक हमने जो चीज़ें वहाँ से हमने फिजिकल चीज़ें और फिजिकल evidences in support of the interior of the earth, whatever things we get from that part, that is the part of direct sources. Along with that, another form of direct sources about the interior of the earth. Tell me. What sir, please repeat. There is one more source of direct evidence about the interior of the earth. What was that? Sir, indirect source. Direct source has two type of direct sources are there. One is whatever the things we get from the deep mining of the world. Another form of direct source, Sir, I don't know. volcanic. So Yes. volcanic eruption actually that is from the interior of the earth. Whatever Yes. volcanic eruption is there, that will come from the mantle part of the earth. And once it reaches the surface of the earth, once it reaches on the surface of the earth, that is also become a direct source. It is coming from the mantle part of the earth and now it is available on the surface of the earth. So while studying, doing research and development on these volcanic stones or volcanic outputs, we can gather much of information about the interior of the earth. So these two are the direct source of information about the interior of the earth. One is deep mines and second is volcanic output. Now the direct, after the direct sources, I also discuss about some of the indirect sources. What are those? Indirect sources. Can you recall it? Can you repeat it about the indirect sources, about the interior of the earth? Yes, sir. Tell me. Try it in any language, in English or in Hindi. Try it first. सर डायरेक्ट सोर्स वो था जो
डायरेक्ट हो गया हमारे बेटा, साइंस इनडायरेक्ट आई एम आस्किंग अबाउट इनडायरेक्ट सोर्सेस. सर इनडायरेक्ट क्लास सोर्स का मैं क्लास नहीं किया था. Okay, you left the class. That's why there is an issue. सो इनडायरेक्ट सोर्स से मैं स्टार्ट कर देता हूँ. आपने ये क्लास किया था, आई थिंक फर्स्ट 2 पार्ट यू हैव डन इट, लेटर पार्ट यू मिस्ड इट. सो इवन देन आई एम रिपीटिंग द सेम पोर्शन अगेन. Indirect sources is all about the things we gathered or the pattern we gathered from the direct sources that will be applied indirectly over the entire earth. देखो क्या है, हम लोग 12 किलोमीटर तक तो डायरेक्टली एविडेंस हम लोग को मिला when we enter into the or when we mined into the earth surface. Up to the extent of 12 kilometer beneath the surface of the earth we gathered information that starting के 1 kilometer में what type of material are there, then later on after the 1 kilometer how material changes. Let's suppose similar type of mineral or similar type of fossil fuel are there at the depth of 1 kilometer, at the depth of 5 kilometer and at the depth of 12 kilometer. So how their property changes, what is the difference in properties of same material found at different depth. Earth have a different layer characteristics. So एक पता चला that with increase actually क्या हो रहा है कि when you go inside the earth surface, जब आप अर्थ के अंदर जाओगे, when you go inside the earth surface, so when you are here, let's suppose this point is 1 kilometer beneath the earth surface. अर्थ सरफेस के अंदर 1 किलोमीटर के नीचे ये वाला पॉइंट है. सो एवर बिट द प्रेशर ऑफ द मटेरियल इज दिस मच. ये सारे का प्रेशर इसके ऊपर है. एंड एज यू आर मूविंग इनसाइड द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जमीन के नीचे जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एट द सेम टाइम प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. And there is indirect references or indirectly the consequences is the density of material also changes. प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी विल बी, डेंसिटी कम नहीं होगा, डेंसिटी विल बी मोर. वॉल्यूम विल रिड्यूस एंड डेंसिटी विल बी मोर. क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू mass by volume. Mass by volume. Density is equal to mass by volume. Mass is same. मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ओपन करता हूँ, उस पर मैं समझाता हूँ. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है. लेट सपोज दिस इज द पोर्शन. यहाँ पे 5 एटम्स आर देयर. सो इन दिस एरिया, एरिया ए है, इन सेम एरिया 5 मॉलिक्यूल्स आर देयर. इफ यू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, क्या होगा? लाइक इन केस ऑफ पिस्टन, गाड़ी का जो पिस्टन होता है उसमें आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ता है तो एरिया रिड्यूस हो जाता है. एरिया रिड्यूस हो गया. सेम एरिया में अगेन द मॉलिक्यूल इज सेम. ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल बदल गया, मॉलिक्यूल इज सेम. सो एक्चुअली क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज्ड. प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. और मास तो सिमिलर है, 5 मॉलिक्यूल यहाँ भी था, यहाँ भी 5 मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. सो डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीजेस. समझ में आ रही है बात? यस सर. वॉल्यूम कम हुआ, डिनोमिनेटर और कम हो गया, तो ओवरऑल जो डेंसिटी था वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज्ड
तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस. सो प्रेशर बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. सेम थिंग हैपन विद टेम्परेचर ऑल्सो. किसी एरिया में आपने यू ऑलरेडी नो अबाउट कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, कोई भी चीज़, मान लो ये कुछ चीज़ है, ठीक है, समथिंग इज देयर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सो थिंग्स वांट टू एक्सपेंड ना, चाहेगा ना कि वो फैले. गैस का मॉलिक्यूल है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देयर इज एन एक्सपेंशन इन इट. टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है. सॉलिड थिंग को आप आग में डालोगे तो और धीरे धीरे आग बढ़ाते चले जाओगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओगे, तो क्या होगा, सॉलिड विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. और टेम्परेचर बढ़ाओगे दैट विल कन्वर्टेड इनटू गैस. यानी कि एक सॉलिड चीज़ था लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड थे, वो थोड़ा लूजन हुए. अब इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा फैल गया. अब गैस में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ये और फैल गया. तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा. यानी कि इनवर्स रिलेशन है. टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा. दोनों रिलेशन समझ में आ गई बात. Yes, sir. तो जमीन के अंदर जा रहे हो आप, व्हेन यू आर इंटरिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, जब जमीन के अंदर आप जाओगे, कोई भी मटेरियल है, तो जितने अंदर जाएगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा. दोनों चीज़ बढ़ रहा है. अब टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है. प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, बट टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा. जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा तो हो सकता है सेम डेंसिटी के साथ ये अंदर जाते जाए. जहाँ प्रेशर का कंपोनेंट बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल, प्रेशर का कंपोनेंट बढ़ेगा डेंसिटी विल इंक्रीज. और जहाँ पे टेम्परेचर विल ओवरकम प्रेशर डेंसिटी विल डिक्रीज. समझ में आ रहा है ये चीज़. Yes, sir. साइंस में समझा था क्लास 9th में, Yes, sir. फिर भी आर्ट्स ले लिए. वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. तो यानी यू हैव सेलेक्टेड आर्ट्स बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स. सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ Yes, sir. स्टूडेंट्स. Thank you, sir. सो यही चीज़ होगा, समझ रहे हो. सो जमीन के अंदर जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिमिलर काइंड, तीनों मान लो कोल है, ऑल आर कोल. कोल फाउंड 1 किलोमीटर बीनीथ, कोल फाउंड 2 किलोमीटर बीनीथ, कोल फाउंड 5 किलोमीटर बीनीथ एंड कोल फाउंड 12 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. सबका अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा. हम देख करके डायरेक्टली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोग्राफर्स एंड साइंटिस्ट कैन फाइंड आउट दीज डिफरेंसेस. तो जो 12 किलोमीटर तक हमने फिजिकली जाके हमने जो एक पैटर्न पता किया, इसी पैटर्न को पूरे इंटायर अर्थ के लेवल पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं. जिस तरीके से डेप्थ के साथ मटेरियल और उसका डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ और घट रहा था, सिमिलरली दैट कैन बी अप्लाइड ओवर इंटायर अर्थ सरफेस. कितना रेडियस है, 6380 किलोमीटर. तो जो 12 किलोमीटर पे हमको जो पैटर्न मिला, सेम पैटर्न वी आर अप्लाइंग ओवर द रेडियस ऑफ 6300 kilometer. So this is directly we does not went inside the earth surface. It is not possible to go inside the earth surface beyond 12 kilometer. 12 किलोमीटर के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है. But whatever the evidence we found or whatever pattern we inferred till the depth of 12 kilometer, same evidence, same pattern can be applied for entire earth level. Yes or no? Yes, sir. So that happened. This is the first kind of indirect sources. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही चीज समझाया है. This is the first kind of indirect sources. Now second type of indirect sources, there are 2 or 3 types of indirect sources as well.
Second is another source of information about the interior of the earth is meteors. Meteors क्या होता है या फिर एस्टेरॉइड क्या होता है, you know? Yes, sir. These are extraterrestrial objects which are smaller in size. Yes, sir. And these meteors and asteroid forms in a way similar the way planets formed. जैसे कि planets बना है उसी तरीके से ये meteors और ये asteroid also formed. But their size are comparatively very little as compared to that of planets. This thing you know or not? Yes, sir. तो कैसे planets बना था ये आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. Did you attended the last chapter class how the planets formed? आवाज नहीं आ रहा सर. I am asking कि आपने लास्ट चैप्टर में planet formation of planet पढ़ा था. I am asking बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट क्लास में लास्ट ईयर में लास्ट चैप्टर ओके नहीं पढ़ा था. ठीक है, दैट आई एम आस्किंग. तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. Actually, all this thing started with an event called Big Bang. Big Bang was happened around 13.7 billion year ago from the present. Billion, ठीक है. Million is 10 लाख. 10 लाख के ऊपर 3 जीरो और बैठाओगे, that will 1 billion. So 13.7 billion year ago there was a supernova explosion. What happened कि जो भी मास था पूरे यूनिवर्स में वो सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड था. तो एक जगह कंसंट्रेटेड था तो डेंसिटी ऑफ द मास इज वेरी हाई. इनफाइनाइट डेंसिटी इज देयर. आप समझ भी नहीं सकते कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा सब, सारा मास एक जगह. और वो और टाइटली पैक्ड होते जा रहा था, वो और धीरे धीरे उसका डेंसिटी बढ़ते जा रहा था. वॉल्यूम रिड्यूस होते जा रहा था सारे मासेस का और डेंसिटी बढ़ते जा रहा था. सो दैट वाज द थिंग एट दैट टाइम. रैंडमली वो प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाया, टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाया, एंड देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट. बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था. एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन. एंड दैट हैपेंड in around 13.7 billion year ago from the present, and this is also called Big Bang theory. So this entire theory is known as Big Bang theory. So supernova जब blast हुआ, वो blast इतना heavy blast था कि जो भी mass था उस समय, जो भी highly concentrated mass था, उस blast के कारण all the things, all the matter got destroyed. ऐसा blast हुआ कि कोई भी matter बचा नहीं, सब खत्म हो गया. एंड ऑल आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. जो सॉलिड फॉर्म में मैटर था वो सब गैस में बदल गया. आफ्टर 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग, ये जो ब्लास्ट हुआ था उसके 3 मिनट के बाद फर्स्ट एटम बिकम फॉर्म्ड. तो पहला एटम बनने में 3 मिनट लगा था. सो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के 3 मिनट के बाद दोबारा से पहला एटम बना. यानी कि एक एटम भी नहीं था उस समय ब्लास्ट के समय. 3 मिनट तक देयर वाज नथिंग. उसके बाद 3 लाख ईयर के बाद, आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, 3 लाख ईयर्स आफ्टर दैट, फर्स्ट विजिबल मैटर फॉर्म्ड. एटम होता है, एटम बहुत सारे एटम मिलेंगे तो मैटर बनता है. तो वैसे ही पहला दिखाई देने वाला मैटर 3 लाख साल के बाद बना सुपरनोवा एक्सप्लोजन के. एंड लेटर ऑन थ्रू सेम प्रोसेसेस गैलेक्सीज, स्टार्स फॉर्म्ड. प्रोसेस क्या था? जब ब्लास्ट हुआ था तो एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, एंड मेनली देयर इज 2 टाइप ऑफ गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. एंड दिस हाइड्रोजन एटम्स आर फ्यूजिंग इनटू ईच अदर. फ्यूजन हो रहा था. फ्यूजन रिएक्शन इज 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग ईच अदर एंड फॉर्मिंग इनटू हीलियम. एंड इन दैट प्रोसेस इट इज रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. 2 हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके एक हीलियम एटम में कन्वर्ट हो रहा था और बदले में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता था. सो थ्रू सेम प्रोसेस गैलेक्सीज, स्टार्स फॉर्म.
धीरे धीरे करके एक जगह कंसंट्रेट होते चला गया. दिस वे अ गैलेक्सी इज फॉर्म्ड विद इन द गैलेक्सी. थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किसी किसी एरिया में विद इन द गैलेक्सी, गैलेक्सीज के अंदर में कहीं कहीं कुछ एटम एक साथ कंसंट्रेट होकर स्टार्स बना दिया. एज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सो इट इज releasing huge amount of energy, and same energy we will witness from our star also in form of sunlight. so ये जितने गैलेक्सी और स्टार्स होते हैं इनका लाइट होता है, अपना लाइट होता है. बट प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट. तो प्लैनेट्स जो बना है ये किसी और तरीके से बना है. दिस विल नॉट फॉर्म द लाइक गैलेक्सीज एंड स्टार्स फॉर्म. स्टार्स का अपना लाइट होता है, प्लैनेट्स का नहीं होता है. तो प्लैनेट्स कैसे बना है? प्लैनेट्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोहेशन एंड एक्रीशन. अब ये कोहेशन और एक्रीशन क्या होता है? कोहेशन में क्या होता है कि सारे जो मासेस हैं वो आपस में अंडर द फिजिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसका मतलब होता है Gmm/r². So under this physical force of gravitation, the masses through the process of cohesion and accretion that form the unified whole. मतलब अलग अलग जगह जो masses हैं, मान लो कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है, ये अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ ये आपस में सर्कुलर मोशन भी करेगा. एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोहेशन एंड एक्रीशन ये मास सब धीरे धीरे एक जगह आ जाएगा. अलॉन्ग विद दैट कुछ गैसियस पार्टिकल भी इसमें आके मिल जाता है. अगल बगल जो गैसेस है, गैसियस क्लाउड विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेबुला, दैट ऑल्सो इंटर्स थ्रू द सेंटर पार्ट. एंड थ्रू दिस प्रोसेस सबसे पहले प्लैनेटेस्मल बनेगा. प्लैनेटेस्मल मतलब छोटा छोटा सॉलिड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हियर. Here everything is happening because of physical force. No chemical reaction is here. ठीक है? So physically ये planetesimal में convert होगा and this way फिर धीरे धीरे planetesimal सब एक साथ मिल जाएंगे and this will form a planet. So indirectly you can say these comets or these meteors are a kind of planetesimal. छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं और ये धीरे धीरे एक होकर के planets बन जाते हैं. And this is happening not through fusion reaction. No chemical reaction is happening here. This is only through physical process, gravitational force and force of rotational motion. ये क्लाउड गैस आपस में घूमते घूमते रिवॉल्व करते करते एक जगह लोकलाइज क्लम्स बना के प्लैनेट्स को फॉर्म करता है. तो इसी तरीके में जो बड़े साइज के जो ऑब्जेक्ट बने उनका नाम प्लैनेट्स दिया गया. And smaller size objects are placed under the category of asteroids and comets. Comets, asteroid में यही डिफरेंस होता है कि asteroid have IC. एस्टेरॉइड के का जो टेल होता है ना वो IC होता है. IC मतलब सन के कंपैरिजन में अगर मान लो दिस साइड इज सन, मैं बता रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस साइड इज सन. अगर किसी दूर के जगह से कोई ऐसा एस्टेरॉइड या छोटा सा ऑब्जेक्ट सन की तरफ आएगा तो क्या होगा, सन के जो सनलाइट के कारण पीछे की तरफ इसका एक आईसी, इधर से ठंडा एरिया से आ रहा है तो आईसी टेल बनता है. तो अगर कोई चीज़ इस एरिया से कोल्डर एरिया से वार्म एरिया की तरफ जा रहा है तो दैट हैव आईसी टेल. दीज आर कॉल्ड कॉमेट्स. और अगर कोई सर्कुलरली ऐसे मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट में मूव कर रहा है या फिर डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है उसका एज कंपेयर टू सन, यहाँ पे मूव कर रहा है, सन के कंपेयर में उसका डिस्टेंस बढ़ और घट नहीं रहा है, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एस्टेरॉइड. ठीक है? yes. तो ये एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स दे फॉर्म्ड थ्रू द सेम वे द प्लैनेट फॉर्म. जैसे प्लैनेट्स बने हैं उसी तरीके से ये भी बने हैं, बट ओनली डिफरेंस इज देयर साइज इज वेरी लिमिटेड. साइज इज वेरी लिमिटेड मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर अर्थ जो है, अर्थ का रेडियस यू ऑलरेडी नो 6300 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. एज कंपेयर टू अर्थ
एस्टेरॉइड हो सकता है कि 50 किलोमीटर रेडियस का एस्टेरॉइड हो, एक छोटा सा एस्टेरॉइड हो, दिस वन, जिसका रेडियस ओनली 50 किलोमीटर हो, और मे बी 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रेडियस का एस्टेरॉइड. सो समटाइम्स दिस कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स यूज्ड टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, आता है और अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करता है और अर्थ पे आके गिर के वहीं पे रह जाता है. समझ रहे हो बात को? जी सर. तो साइंटिस्ट अब क्या करते थे कि ये उनको पता चल जाता था दैट दिस इज द पार्ट ऑफ कॉमेट्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड. तो अब उस एस्टेरॉइड को उठा के या उस कॉमेट्स को उठा के वो स्टडी करते थे, बिकॉज द रेडियस ऑफ सर्टेन एस्टेरॉइड इज एज लो एज लेसर देन 12 किलोमीटर. बहुत सारा ऐसा एस्टेरॉइड भी मिला उनको जिसका 12 किलोमीटर से कम रेडियस का एस्टेरॉइड उनको मिला. एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी कि हम 12 किलोमीटर तक ड्रिल कर सकते हैं. 12 किलोमीटर तक ड्रिल करने की टेक्नोलॉजी वी हैव. सो इन दिस वे उनके ऊपर ड्रिल करके, प्रोसेस तो सिमिलर प्रोसेस से बना है, तो उनके ऊपर ड्रिल करके दे रीच द सेंटर ऑफ द एस्टेरॉइड, कि अर्थ एस्टेरॉइड के सेंटर तक वो पहुंच गए. तो जितना टाइप का लेयर बन सकता था एस्टेरॉइड में, दे ऑल्सो विटनेस दैट कि अरे ये टॉप वाला लेयर है, इसके अंदर ये मोल्टन लेयर आया, और नीचे जाके देखे तो देखे कि गैसियस लेयर इज देयर, एंड लेटर ऑन दे फाउंड कि सेंटर के आसपास सॉलिड बन रहा है. गेटिंग इट? यस सर. सो दिस वे दिस इज ऑल्सो एक्ट एज एन इनडायरेक्ट सोर्स. इसी चीज को इन्होंने अप्लाई कर दिया कि अर्थ भी इसी तरीके से बना है, तो अर्थ के अंदर भी ऐसा ही ऐसा होगा. वहां से ये भी पता कर लिया कि एस्टेरॉइड में जो टॉप लेयर है, जो क्रस्ट, जैसे अर्थ का क्रस्ट है वैसे एस्टेरॉइड का जो क्रस्ट है या कॉमेट का जो क्रस्ट है वो 12 किलोमीटर में 200 मीटर का है. उसके बाद मेंटल वाला पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का. देन आउटर कोर इज 3 किलोमीटर, इनर कोर इज 2 किलोमीटर. सो जिस रेशियो में वहाँ पे मिला, सेम रेशियो में अगर दैट थिंग मैथमेटिकली अगर उसको कैलकुलेट कर दिया जाए, सेम रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दें 12 किलोमीटर रेडियस के जगह 6380 किलोमीटर रेडियस में, तो इनडायरेक्टली अर्थ क्रस्ट का क्या विथ होगा, अर्थ मेंटल का क्या विथ होगा, अर्थ आउटर कोर का क्या विथ होगा, अर्थ इनर कोर का क्या विथ होगा. इनडायरेक्ट एविडेंस आर फाउंड देयर. यस सर. ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर. सो दीज टू आर द इनडायरेक्ट एविडेंस. 2 इनडायरेक्ट एविडेंस बता दिए. थर्ड इनडायरेक्ट एविडेंस इज द थर्ड इनडायरेक्ट सोर्सेस इंक्लूड्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस. तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो अर्थक्वेक आता है तो उसका अर्थक्वेक वेव, सिस्मिक एक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस. जितना जमीन के अंदर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो चेंजेज. सो दीज विल एक्ट एज अ फोर्थ टाइप ऑफ और थर्ड टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेस. इससे पता लगा लिए कि कौन सा वेव आया, किस एंगल से मूव किया. सो थ्रू दीज थिंग while studying these evidences they have a clear cut idea कि what is beneath the surface of the earth. ठीक है, सो ये जो थर्ड वाला है यहाँ से हमको स्टार्ट करना था. आज मैं यहीं पे रुकूंगा बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर नॉट हियर, और मैं अभी पढ़ाऊंगा तो फिर बाकी लोगों का लॉस होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, हाँ टाइम भी हो गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क योर क्वेश्चंस.